Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In context to the digital logic, this is our lecture number 7. In first lecture we have discussed Boolean laws, Boolean के ला हमने डिस्कस किए हैं. सेकंड लेक्चर के अंदर हमने सोप फॉर्म एंड पोस्ट फॉर्म डिस्कस की थी. थर्ड लेक्चर के अंदर हमने के मैप को सोल्व करना सीखा था. फोर्थ लेक्चर के अंदर हमने पी वाई क्यूज़ किए थे गेट से. And for the fifth lecture and sixth lecture we are doing the simplification of a boolean expression. फिफ्थ और सिक्स्थ लेक्चर के अंदर हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ी है boolean expressions की. Now this is our lecture number 7th. We will continue the simplification of boolean expression in this lecture also. Now let's start the lecture. This is our question number 16th on boolean simplification. The simplified form of the boolean expression. Now you have a boolean expression y is equal to a bar b c plus d and a bar d plus b bar c. You have this boolean expression and you have to simplify it. आपको इसको simplify करना है. Now how we will simplify it? नाउ लेट ओपन द ब्रैकेट. हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं. वी विल मल्टीप्लाई इट बाय दिस. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? ए बार बी सी. नाउ दिस ए बार डी प्लस ए बार बी सी एंड बी बार सी बार. नाउ प्लस दिस डी इज मल्टीप्लाई बाय दिस ए बार डी प्लस नाउ d b bar c bar. You have this. Now look at the expression we have a bar and a bar, so it will combine a bar. Now b c d you have plus यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? b and b bar. If we multiply any literal with its complement then it will become 0. ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. If any literal will multiply by itself its complement, अगर किसी लिटरल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. सो दिस होल टर्म विल बिकम 0. ये सारी टर्म क्या हो जाएगी आपकी? 0. सो वी विल पुट हेयर 0. नाउ what is this there is a d and a d, this will combine, so we can write at a dash d plus d b बार c बार. वी हैव दिस एक्सप्रेशन. नाउ हमारे पास ये एक्सप्रेशन आपका आ गया है. नाउ लुक एट द क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. नाउ इन दिस टर्म, इस टर्म में से और इस टर्म में से यू कैन टेक कॉमन ए बार डी. यू विल टेक द कॉमन ए बार डी. यू टेकन कॉमन. नाउ यू हैव रिमेनिंग बी सी प्लस फ्रॉम देयर दिस इज 1. नाउ प्लस बी बार सी बार डी. यू कैन राइट दिस. ये वाली टर्म हमने इस प्रकार से लिख दी. नाउ इन दिस यू कैन सी दैट बी सी प्लस 1 एनी लिटरल और कम्बिनेशन ऑफ एनी लिटरल इज ओरिंग विद 1, इट विल गिव यू 1 ऑलवेज. तो ये आपको 1 देगा. सो दिस होल टर्म विल बिकम 1. नाउ ए बार डी, नाउ इट विल बिकम 1 प्लस बी बार सी बार डी. यू हैव. नाउ what you can do, we have a bar d plus b bar c bar d. now I think this is the simplest form. ये आपकी क्या आ गई? simplest form आ गई. you can not simplify it further. आप इसको आगे simplify नहीं कर पाएंगे. so the question or answer of this question is this. तो simplification term आपकी क्या आ गई? ये आपकी simplification term आ गई. now check to the options. So here a dash d plus b bar c bar d. You have option A here. So the answer of the question number 16th will be A. Now move to the next question. This is question number 17th. This is question number 17th and here a b plus a bar b bar is given to you. The boolean expression a b plus a bar b bar is logically equivalent to. इनमें से किसके जैसा ये होगा? Now we will do it by solving one by one. हमें सोल्व करना पड़ेगा बिकॉज वी आर चेकिंग द ऑप्शन हेयर. बिकॉज हमें बताना है किसके इक्विवेलेंट है. सो हम फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं पहले. वी हैव ए प्लस बी बार
and we have a bar b. Now opens the bracket. Now you will have a bar a bar b plus b bar a bar b b bar a bar b. Now if you can see that you have a bar here and b bar b here, and if you ended anything with its complement, then you will get 0. So a ended with a bar will always be equal to 0, and b ended with b bar will always be equal to 0. So this whole term will become 0 and this whole term will become 0. तो ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट 0 हो जाएगी. So this is your 0. तो जी ये आपका है, ये इक्विवेलेंट है 0 के. सो इट इज़ नॉट योर करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट नहीं है आपके लिए. नाउ चेक फॉर द सेकंड ऑप्शन आल्सो. सेकंड को चेक करते हैं. नाउ योर सेकंड ऑप्शन इज ए बार प्लस बी बार एंडेड विद ए प्लस बी, या ए और बी. नाउ ओपन्स द ब्रैकेट ए बार ए प्लस ए बार बी प्लस b bar a plus b bar into b. We have opened the bracket. Now this term is 0 because anything ended with its complement will always be equal to 0. This is also 0. So you will have a bar b plus b bar a, and this is your a XOR b. This is your a XOR b. ये आपका a XOR b होगा. So this is not your answer, and you know that, you should know that ए बी प्लस ए बार बी बार, दिस इज योर एक्सनोर. ये क्या है आपका, एक्सनोर है. दिस इज योर एक्सनोर. वी विल डिस्कस दिस इन द लॉजिकल गेट्स. लॉजिकल गेट्स के अंदर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं. नाउ दिस इज योर एक्सोर गेट. ये क्या है आपका, एक्सोर है. इज दैट क्लियर. तो यहाँ पे क्या है, एक्सोर के अंदर क्या होता है, एक का कॉम्प्लीमेंट दूसरा एज इट इज़ और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट पहला एज इट इज़. अगर इस प्रकार से है तो उसको एक्सोर बोला जाएगा. और एक्सोर को लिखने के लिए क्या करेंगे, लिटरल सर्कल लगाएंगे, सर्कल के बीच में प्लस. अगर प्लस साइन है दैट मीन्स इट इज़ एक्सोर. और एक्सोर को लिखना कैसे है, पहले वाला का बार ले लें, दूसरे वाला एज इट इज़, प्लस दूसरे वाले का बार ले लें, पहले वाला एज इट इज़. यू कैन राइट दिस, एंड यू कैन ऑल्सो राइट दिस ए बी बार प्लस बी ए बार. यू कैन राइट दिस ऑल्सो. सो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो फॉल्स. 2 भी आपका ट्रू यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज आवर गिवन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बार बी बार इज योर एक्सनोर, एंड इफ यू आर डूइंग ए प्लस बी बार एंड ए प्लस बी, इट विल गिव यू ए बार बी प्लस ए बी बार, एंड दैट इज योर एक्सनोर. ये एक्सोर, ये क्या है आपका एक्सोर. सो दिस टू आर नॉट इक्विवेलेंट. तो ये दोनों आपके इक्विवेलेंट नहीं होंगे. नाउ चेक द ऑप्शन नंबर थर्ड. थर्ड ऑप्शन को हम चेक करते हैं. वी हैव ए बी बार प्लस ए बार बी एंड होल बार. सो वी विल अप्लाई हेयर डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ हम लगाएंगे. दिस इफ यू हैव एक्स प्लस वाई होल बार, देन यू कैन राइट इट एक्स बार डॉट वाई बार. यू कैन राइट दिस. आप इसको कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और प्लस को जैसे ही ब्रेक डाउन करेंगे तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट में. अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं एक्स प्लस वाई बार, अगर इनको कंबाइन करते हैं हम, तो आपका प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इफ़ यू आर ब्रेकिंग, अगर कॉम्प्लीमेंट को अगर आप ब्रेक कर रहे हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक कर रहे हैं, तब भी आपका क्या होगा, प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. इफ़ यू आर एडिंग टू कॉम्प्लीमेंट्स, दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, देन आपका क्या होगा, प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट में, और डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में. दिस इज योर डी मॉर्गन्स लॉ. ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ. सो यू कैन अप्लाई दिस. नाउ वी विल डू अवर क्वेश्चन. हम अपना क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड. नाउ what we are doing, we are splitting this complement. So a b bar whole bar, now this plus will become dot, and a bar b whole bar. we have write, हमने इस ऊपर वाले को complement को break कर लिया, divide कर लिया. now here we divide this also. हम इसको भी divide करके देखते हैं. अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, जो इन दोनों के बीच में डॉट है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो वी विल हैव ए बार प्लस बी बार का बार. हमने इस बार को
तोड़ लिया। नाउ दे आर एंडेड विद, यानी डॉट आपका क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, ए बार बार, और डॉट किसके अंदर कन्वर्ट हो, जो इनके बीच में डॉट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका और में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज ए बार प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार, बिकॉज वी हैव, अगर हमारे पास क्या है, किसी भी लिटरल का कॉम्प्लीमेंट है, अगर उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लें दोबारा, देन वी विल गेट द लिटरल अगेन। नाउ opens the bracket, now we have a bar then ended with a plus a bar ended with a bar ended with b bar plus b ended with a b ended with a plus b ended with b ended with b bar. Now this term will become 0 and this will become 0, ये दोनों टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी. So we will get a bar b bar plus ab, you will get this, and now you can check this is same as that of this is your XNOR gate, ये क्या है आपका XNOR ऑपरेशन है, and you can write it like this dot b, this is your XNOR. So option C will be correct for this, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट. नाउ चेक फॉर द फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, ए बी बार, नाउ वी हैव ए बार बी बार होल बार. नाउ वी विल अप्लाई द डी मॉर्गन्स, हमने कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक कर लिया तो जो एंड है वो और बन जाएगा. यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या था, एंड ऑपरेशन था, तो ये क्या बन गया, और. नाउ इट विल बिकम ए बार, इन दोनों के बीच में जो एंड है वो क्या बन जाएगा, और बी बार. नाउ अगेन ए बार प्लस बी बार एंड वी विल हैव ए प्लस बी. आई थिंक दिस इज सेम एज दैट ऑफ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू, आपका क्या आया था, ये ए बार बी प्लस बी बार ए, एंड दिस इज इक्वल टू ए, दिस विल बी ए प्लस बी, दिस इज योर XOR, this is your XOR. So this is not also, because second and fourth are same, second and fourth आपके क्या हैं, सेम है, और ये क्या दे रहे हैं, XOR दे रहे हैं, and first option is giving you 0 and the third option giving you AB plus A bar B bar. So our third option is correct here, so answer C will be there. तो ये क्या हो जाएगा, आंसर C will be correct option for 17th question. Now move to the next question. We have 18th question. The function f is equal to, you have something f is equal to a b c bar plus a b c plus a bar b c plus a bar b c bar. Now you have to tell, to reduce करना है आपको, f can be reduced to which one of the following, इसमें से किसके जैसे ये रिड्यूस किया जा सकता है. 18th क्वेश्चन आपका ये है. नाउ इफ वी डू समथिंग दैट, इफ वी टेक द कॉमन फ्रॉम दीज टू, फर्स्ट दीज टू टर्म्स यू कैन टेक कॉमन ए बी. नाउ यू विल हैव सी प्लस सी प्लस, इन दोनों के अंदर से आपका क्या हो जाएगा, ए बार बी वी कैन टेक कॉमन. नाउ यू विल हैव सी प्लस सी बार. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज योर सी प्लस सी बार एंड दिस इज योर इनवर्स लॉ, इट विल इक्वल टू 1. अगर आप किसी का लिटरल का और करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो 1 देगा, अगर किसी लिटरल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप क्या करते हैं, एंड करते हैं, देन इट विल गिव यू 0. सो यू हैव टू रिमाइंड इट. सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट विल गिव यू 1, सो यू विल हैव ए बी, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. दिस इज आल्सो 1 एंड यू विल गेट ए डैश बी. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यू आर टेकिंग कॉमन ए प्लस ए बार, बी आपने क्या ले लिया कॉमन. नाउ दिस इज अगेन लिटरल एंड ओरिंग विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, सो इट विल बिकम 1. तो नाउ दिस इज आल्सो बिकम 1, ये भी आपका 1 हो गया, सो यू विल गेट बी, तो आपको क्या मिल जाएगा, बी. सो हेयर फॉर दिस क्वेश्चन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. एफ कैन बी रिड्यूस टू बी, एफ आपका बी के बराबर हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 18th you have, 19th you have, the boolean function a plus bc is reduced to, आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी सी को किस में रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस टू विच ऑफ द फ्लोइंग. नाउ वन बाय वन इफ़ यू कैन चेक,
इफ़ यू कैन चेक ऑप्शन ए, ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ए बी प्लस बी सी, कैन यू टेक कॉमन बी, सो ए प्लस सी। नाउ दिस कैन नॉट बी रिड्यूस फर्दर, ये आगे रिड्यूस नहीं हो सकती है, एंड दिस इज नॉट इक्वलेंट टू दिस, ये बराबर नहीं है। सो ए एंड ए ऑप्शन इज नॉट इक्विलेंट टू ए प्लस बी सी, इसके इक्विलेंट नहीं है। नाउ चेक फॉर द बी ऑप्शन, you have AB plus AB bar C, you have this। now if you do anything, इसके अंदर आप कुछ कर सकते हैं, हम इसके अंदर शायद नहीं कर पाएंगे कुछ भी। now this is your A bar B plus AB bar C। now if we want to reduce it, now we are applying the के मैप, हम यहाँ पे के मैप को लगा के देखते हैं और इसको रिड्यूस करके करने की कोशिश करते हैं, क्या रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे देखने से तो इसको नहीं लग रहा है कि हम कोई बुलियंस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इस पे। नाउ वी हैव 3 वेरिएबल्स, सो वी हैव 3 2 रेज़ टू पावर 3 8 हमारे पास क्या आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे। सो वी विल हैव टू इनपुट्स आएंगी 8 आपकी, सो वी विल हैव टू टेक 8 बॉक्सेस, आपको 8 बॉक्सेस लेने हैं। now we are taking these 8 boxes। now this is your A and this is your BC। now we have what in the option B, B के अंदर आपके पास क्या है, B के अंदर आपके पास है आपका A बार B प्लस A B बार C। now if you want to apply the K map, then you have to make all the variables in a single product term। सिंगल प्रोडक्ट टर्म के अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स आपके आने चाहिए। सो हेयर वी कैन राइट दैट A बार B, आपका यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया 1, वी आर एडिंग 1, A B बार C। नाउ व्हाट कैन यू डू, A बार B, नाउ दिस 1 कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज C प्लस C बार, तो हमने C प्लस C बार लिख दिया, प्लस A बार B C, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 1, ये आपकी 1 के बराबर होती है। नाउ इफ़ यू ओपनिंग द ब्रैकेट A B बार C प्लस A बार B C बार प्लस A B बार C, यू हैव दिस 3 टर्म्स, आपके पास ये 3 टर्म्स आई हैं। नाउ दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर 1, दिस इज योर 0 0, दिस इज योर 0 1, दिस इज योर 1 1 एंड दिस इज योर 1 0। नाउ पुटिंग द वैल्यू, दिस आर मिन टर्म्स, ये आपकी क्या है, दीज आर मिन टर्म्स, ये मिन टर्म्स हैं आपकी, और के मैप के अंदर मिन टर्म्स को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी मिन टर्म है। ए बार, दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या है आपकी 0, बार है तो 0 लेंगे 0। नाउ बी एंड सी आर 1, सो बी एंड सी आर 1 हेयर, बी और सी 1 1 है यहाँ पर आपके और 0 है यहाँ पे, सो वी विल पुट 1 हेयर, हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। दिस इज फर्स्ट मिन टर्म यू हैव। नाउ ए बार, दिस इज 0 एंड बी इज 1, बी इज 1 एंड सी इज 0, सो यू विल हैव 0 1 0, तो 0 1 0, this is your next min term। now the next min term is A B bar C। now you have 1 and B की वैल्यू क्या है 0, C की वैल्यू क्या है 1, so 1 0 1 1 0 1, so you will have 1 and 0 1, this will you have, आपके पास ये min term आ गई। now you have to do the pairing, आपको क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। now यू हैव टू मेक द मैक्सिमम पेयर्स, आपको मैक्सिमम पेयर बनाने हैं, कितने मैक्सिमम पेयर आपके हो सकते हैं, तो मैक्सिमम का आपका यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर आप बना सकते हैं। तो हम पेयरिंग करते हैं, नाउ डू द पेयरिंग, कि भाई एक तो पेयर ये बन गया आपका। नाउ इसको आपको अकेले ही लेना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ नो चांसेस, क्योंकि हम नेबरिंग वंस को पेयर कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट हम इस वाले पेयर को लेते हैं, वी विल टेक दिस पेयर, इन दिस ए इज़ 0 इन दिस ब्लॉक, तो ए की वैल्यू क्या है 0, एंड द इन दिस ब्लॉक ए इज़ आल्सो 0, तो दोनों के अंदर ए क्या है आपका 0। नाउ इन दिस ब्लॉक बी इज़ 1 एंड सी इज़ 1। नाउ इन दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर, अगले ब्लॉक के अंदर आपका क्या है, बी इज़ इक्वल टू 1 एंड सी इज़ इक्वल टू 0। नाउ वी आर checking which is changing, A is not changing, so we will take this, B is not changing, so we will take this, and C is changing from 1 to 0, C आपका 1 से 0 हो गया, so we will not take this। now the first product term will be A is 0, so we will take A bar, so we will take A bar। now B is equal to 1, so we will take B, so your first min term is this A bar B।
your first term is a bar b. now second min term is you have to take इस ब्लॉक के अंदर आपका क्या है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1. a इज इक्वल टू 1, b is equal to 0 and c is equal to 1. So in this block you have this. So you have to take all these three because there is a single term. So you have a की वैल्यू 1 है तो a लेंगे. Now b is 0 so we will take b bar and c is 1 so you will take c. So the simple form of this, अगर हमने इसकी सिंपल फॉर्म निकाली है, इसकी सिंपल फॉर्म हमारे पास यही आई, दैट मीन्स इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म इटसेल्फ. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, तो इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट रिड्यूस इट फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं और ये सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी आएगी. सो दिस विल नॉट बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. ये आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है. नाउ चेक फॉर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आपके पास क्या है, a प्लस बी एंड वी आर डूइंग a प्लस सी. नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट्स, a प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी. नाउ यू हैव दिस. if you take a this will term will be a, इसको a ही लिख सकते हैं हम. any literal ended with itself will give you a always. तो ये आपको a ही देगा. so here from here we have a c, from here we have a b, from here we have b c. now taking a common from here, a common ले लेते हैं. now you have a 1 plus c plus a b plus b c. now anything oring with 1 then it will give 1 always, so we will get 1. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1. so a and 1 a b plus b c. now you are taking a common from here, so this is 1 plus b plus b c and this is your 1 again. any literal oring with 1 will give you 1, so this is 1, so you will get a plus b c. so option सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. तो हमारा ऑप्शन सी को हम रिड्यूस कर सकते हैं ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर. सो दिस इज़ योर ट्रू, ये आपका ट्रू है. नाउ दिस व्हाट इज़ दिस लॉ कॉल्ड, इसको इस लॉ का एक नाम भी है a प्लस बी एंड a प्लस सी. अगर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज ओपन करके लिख देंगे इसको. दिस इज योर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बिकॉज इफ a प्लस बी सी कैन बी रिटन एज a प्लस बी एंड a प्लस सी. दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो यू हैव टू रिमाइंड इट आल्सो. ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 20th एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई इट आल्सो. इसको मिनिमाइज करना है. now what you have AD plus ABCD plus ACD plus A bar B plus AC bar D plus A bar B bar. now firstly we will check what we can do. we can do the AD common from this term. इस टर्म में से AD आप कॉमन ले सकते हैं. so we will have this, आपके पास ये बच गया. now in the next term we cannot take anything common from here but we can take common from this and this term. हम यहाँ से AD को कॉमन ले सकते हैं. so we are taking AD common, so we will have C plus C bar. now we have remaining these two term A bar B plus. now in these two term can we take anything common, so we can take common A bar. A bar हमने कॉमन ले लिया, so we will get B plus B bar. now this term will become 1. एनीथिंग कुछ भी अगर आप ओरिंग करते हैं 1 के साथ तो ये आपको 1 ही देगा. सो इट विल गिव यू 1, सो वी विल गेट AD हेयर C प्लस C बार. एनीथिंग ओरिंग विद इट्स कॉम्प्लीमेंट देन विल गिव यू 1 ऑलवेज. सो दिस इज आल्सो 1, सो यू विल गेट AD फ्रॉम हेयर एंड B प्लस B बार will always be equal to 1 because anything oring with its complement will give you always 1. तो ये 1 देगा तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, A बार. सो यू विल गेट A बार. नाउ दिस AD प्लस AD कैन बी रिटन एज AD. तो ये आपका क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, AD प्लस A बार. नाउ दिस इज योर
मोस्ट सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, ये आपकी सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई, इससे आगे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। सो इन द 20th क्वेश्चन ए डी प्लस ए बार, ए डी प्लस ए बार, सो हेयर बी ऑप्शन इज योर करेक्ट। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो हेयर वी हैव डन 20 क्वेश्चन इन दिस लेक्चर and we will do something more, MCQs in the upcoming lectures. So please share and subscribe the channel more and more, and do the practice. Thank you students, have a nice day.